کوئی رنگ کالا کوئی پیلا کوئی لال گلابی کردا، بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نو چڑھدا۔ وہاں بیٹھا پورا مجمع اس کلام کے ان جملوں میں بے اختیار ہاتھ اور بازو اٹھا اٹھا کر داد دے اٹھا تھا، اور داد دینے والوں میں نیہا بھی تھی جو اس کے برابر فرشی نشست پر بالکل پہلی قطار میں بیٹھی تھی۔ گلوکار مچا ہوا تھا اور پکے سروں کے ساتھ گا رہا تھا اور بار بار ان جملوں کو دہرا رہا تھا جس پر اسے داد مل رہی تھی۔ 40-50 لوگوں کا وہ مجمع جیسے جھوم رہا تھا۔ کچھ کے ہاتھوں میں مشروب کے گلاس تھے اور کچھ اس سونف اور سپاری کو بار بار لے کر منہ میں ڈال رہے تھے جس کی ٹرے لیے ویٹر بار بار چکر لگا رہا تھا، اور کچھ فرشی نشست پر تقریباً نیم دراز آنکھیں بند کیے سرور کے کسی عالم میں پہنچے ہوئے تھے۔ گلوکار نے بلا شبہ سما باندھ دیا تھا، اور اس مجمع میں صرف چند لوگ تھے جو گلوکار کو کسی داد و تحسین کے بلند و بانگ اظہار کے بغیر سن رہے تھے، اور ان میں سے ایک قلب مومن بھی تھا۔ وہ گلوکار پر بغور نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کے کہنے پر لہک نہیں رہا تھا اور نہ دوسروں کے کہنے پر بہک رہا تھا، نہ ہاتھ پاؤں اور سر کو گلوکار کی تانوں اور اس کے میوزک پر ہی ہلا رہا تھا، وہ بس سن رہا تھا۔ کسی جملے پر وہ محظوظ ہوتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور سر کی ہلکی سی جنبش پر وہ داد دیتا، لیکن ایسا شاید اس 1.5 گھنٹے کی محفل میں 2 یا 3 بار ہی ہوا تھا۔ وہ وہاں نیہا کے اسرار پر آیا تھا، ورنہ اسے صوفی کلام کی محفلوں میں آنے اور وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اس کے مزاج کی موسیقی نہیں تھی، مگر نیہا کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اف، سو سپریچول! نیہا نے اس کے برابر بیٹھے ہوئے گلوکار کی کسی لائن پر جھومتے ہوئے قلب مومن کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سپریچول کیا تھا اس گانے میں، اس کے کلام میں، یہ مومن جان نہیں پا رہا تھا۔ آواز کمال تھی، طبلہ اور ہارمونیم بجانے والے اپنے کام کے ماہر تھے، لیکن بس اس کے علاوہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جس پر وہاں موجود لوگ سپریچول ہو رہے تھے۔ گلوکار نے اگلا کلام شروع کیا تھا اور قلب مومن نے نیہا کے کان میں سرگوشی کی۔ چلیں؟ اس نے حیرانی سے مومن کو دیکھا اور کہا، کہاں؟ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کے کان میں ایک اور سرگوشی کی۔ اس نے جواباً بے حد تجسس کے عالم میں مومن کا چہرہ دیکھا جس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر نیہا وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر تو آ گئی، لیکن وہ اب بھی ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ ان کی گاڑی گاڑیوں کی لمبی قطار کے تقریباً آخری سرے پر تھی جو اس گھر کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی جہاں وہ یہ محفل موسیقی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ کمال ہی کر دیا، مجھے لگ رہا ہے میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے نیہا نے اپنے بازوؤں کو عجیب سرمستی کے عالم میں سر سے اوپر بلند کرتے ہوئے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک سلیو لیس پلازو اور لانگ سکرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ مختصر پلازو اس کی کمر اور پیٹ کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہا تھا۔ اس سفید سلک کے پلازو اور سیاہ سکرٹ میں وہ گلے میں بہت ساری لمبی اور چھوٹی زنجیریں اور پتھر پہنے ہوئے تھی جنہوں نے اس کے سینے کو تقریباً چھپا دیا تھا۔ باہر چلتی ہوئی ہوا اس کے کٹے ہوئے بالوں اور لٹکے ہوئے سکرٹ کو بار بار اٹھا رہی تھی، اور نیہا دونوں سے بے پرواہ تھی۔ نہ وہ بالوں کو اڑ کر اپنے چہرے اور ماتھے پر آنے سے روک رہی تھی، نہ اپنی لمبی خوبصورت ٹانگوں سے بار بار ہوا سے اٹھنے والے سکرٹ کو۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اس نے گلوکار کے بول گنگناتے ہوئے سگریٹ پھینکا۔ مومن میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اس کے پہلے جملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، اور نیہا نے جیسے اس کی توجہ لینے کے لیے اسے دوبارہ وہ جملہ دہرایا۔
वो तो तुम हर बार ऐसी किसी महफिल को अटेंड करने के बाद चंद घंटों के लिए हो जाती हो, इसलिए परेशान मत हो, चंद घंटों के बाद ठीक हो जाओगी। तो साथ चलते हुए मोमिन ने अपनी ट्राउजर की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए उसे जैसे तसल्ली दी। नहीं यार, आज कुछ और ही कैफियत हो गई है मेरी। नेहा ने जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो मुतासिर नहीं हुआ। अच्छा, गुड फॉर यू, उसने साथ चलते हुए इसी अंदाज में उसको कहा। तुम ये कवाली अपनी फिल्म में डलवाना, नेहा ने यकदम गुलकार की सबसे पहली कवाली के बोल दोहराते हुए मोमिन से कहा। वो उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। मेरी फिल्म में कवाली का क्या काम? यार स्पिरिचुअली आएगी, नेहा ने जैसे दलील दी। यानी मेरी फिल्म का शो देखते ही ऑडियंस सिनेमा में मस्जिद ढूंढना शुरू कर देगी, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में नेहा से कहा था। तुमसे बातों में नहीं जीत सकती मैं, सुजेशन दे रही थी। बॉलीवुड की फिल्म में नहीं देखा, हर फिल्म में कवाली डालता है सलमान खान और हर फिल्म सुपरहिट। नेहा ने जैसे उसे कायल करने की कोशिश की। वो सड़क पर अब भी वही बोल गाने और लहराने की कोशिश कर रही थी, बाजू फैला फैला कर। वहां खड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की खुद पर मरकूज ताक़ुब करती हुई नजरों से बेखबर। मेरी कवाली के बगैर भी सुपर हिट होती है फिल्म। मोमिन को इस वक्त सुलेमान खान का हवाला बुरा लगा। उसकी फिल्म 100 करोड़ करती है। नेहा वाकई किसी और कैफियत में थी, वरना उसके साथ सुलेमान खान का जिक्र करती, जो मोमिन का नापसंदीदा तरीन अदाकार था। वो स्पिरिचुअलिटी और कवाली से 100 करोड़ नहीं बनाता, आइटम नंबर से बनाता है। अपनी गाड़ी का लॉक दूर से ही खोलते हुए उसने नेहा को जवाब दिया। उसकी गाड़ी ने दूर से ही लाइट्स चमकाकर जैसे उसका इस्तकबाल किया था। व्हाटएवर, लेकिन तुम मेरी हालत नहीं देख रहे। कभी इस हालत में देखा है तुमने मुझे? ये स्पिरिचुअलिटी नहीं तो क्या है? नेहा ने उसकी बात का बुरा मनाया। ये उन चर्स वाले सिगरेटों का असर है जो तुम बार बार टेरेस पर जाकर पी कर आ रही थी। स्पिरिचुअलिटी नहीं है ये। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको बड़ा पता है स्पिरिचुअलिटी का। और बाय द वे, मैंने सिर्फ 2 सिगरेट्स पिए थे, 2 से मुझे कुछ नहीं होता। नेहा ने भी गाड़ी में बैठते हुए उसे जवाब दिया और साथ ही उसे कुछ याद आया। तुमने सोफी का नखरा देखा? मोमिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेइख्तियार हंसा। तुम सूफी से सोफी पर आ गई इतनी जल्दी? बको मत। क्या पहन के आई हुई थी वो, और प्रिटेंड यूं कर रही थी जैसे पता नहीं कौन से प्लेनेट की डिजाइनर हो। नेहा का दिमाग वाकई अब उस सूफियाना कलाम से सेकंड्स में उस डिजाइनर पर आ गया था जो उसकी हरीफ थी। आई लव्ड हर क्लोथ्स, हर सेंस ऑफ स्टाइल इज अमेजिंग, मोमिन ने जवाबन कहा। वो ऐसा ही था। नेहा उसकी गर्लफ्रेंड थी, मगर मोमिन को जो चीज अच्छी लगती थी वो उसके बारे में खुले दिल से तबसरा करता था। ना होने के बराबर कपड़े पहने हुए थे उसने, ताकि सब मर्द उसे देखें। चीप हरकत। नेहा के लहजे में अजीब तरह की मिडिल क्लास जेलसी गूंजी थी। अगर ये स्ट्रेटजी थी तो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि सब मर्द वाकई उसे ही देख रहे थे। मैं भी। शी लुक्ड हॉट। मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे तपाया। वो जानता था नेहा सोफी को पसंद नहीं करती। मोमिन, नेहा ने जैसे उसे खबरदार किया। मुझसे अगली फिल्म में वार्डरोब डिजाइन करने की बात कर रही थी। मोमिन ने उसकी ललकार के जवाब में कहा। नेहा को जैसे आग लग गई। उसकी इतनी हिम्मत। यार प्रोफेशनल है, अपॉर्चुनिटी देख रही है वो मेरे साथ काम करके। मोमिन ने जैसे उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। तुम उसके साथ काम नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारा अगली फिल्म की वार्डरोब भी करूंगी। सुना तुमने? वो हंसा। सुन लिया यार, कर लेना, अब गुस्सा खत्म करो। तुम वो सूफी होने और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, वो बताओ मुझे। मजाक मत उड़ाओ मेरा। नेहा उसकी रग रग से वाकिफ थी।
वो सरप्राइज क्या था जो मुझे देना चाहते थे? उसे यकदम याद आया। मोमिन ने जवाब देने की बजाय अपनी गाड़ी कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर लाते हुए कहा, मेरे अपार्टमेंट चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। नेहा ने दिलचस्पी से उसे देखा। उसे इस सरप्राइज का बेहद इंतजार था और तवक्को भी, लेकिन वो ये कन्फर्म करना चाहती थी खुशी के किसी इजहार के बगैर कि वो खुशफहमी का शिकार नहीं हो रही थी। अपने पेंट हाउस का दरवाज़ा की कार्ड से खोलते हुए नेहा को लिए वो अंदर आया था, और अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नज़र लॉबी में दीवार के साथ पड़े कंसोल पर रखे एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी थी। वो यकीनन शकूर ने कुरियर से वसूल करने के बाद हमेशा की तरह वहाँ रखा था, जहाँ उसकी डॉग वो हमेशा रखता था। नेहा अब भी मुसलसल सोफी के हवाले से कुछ बोलती जा रही थी, मगर चंद लम्हों के लिए उसे इस लिफाफे पर नजर डालते हुए वो जैसे अपने माहौल से गाफिल हुआ था। उसके साथ अंदर दाखिल होते हुए नेहा रुके बगैर अंदर लाउंज में चली गई थी, और मोमिन सीधा उस कंसोल की तरफ आया था। उसने लिफाफे को उठाकर देखा। मोतियों जैसी तहरीर में लिफाफे पर उसका नाम लिखा हुआ था, उसी अंदाज में जिस तरह हमेशा लिखा होता था। उसने उंगलियों से जैसे लिखने वाले के लम्स को अपने नाम पर हाथ फेर कर ढूंढा, महसूस किया। फिर लिफाफे को बगैर खोले उसने कंसोल का दरवाज़ा खोलकर अंदर रख दिया। वो दराज उन जैसे बहुत से अनखुले लिफाफों से भरा हुआ था, और उन सब पर एक ही नाम था, कल्बे मोमिन। नेहा टेरेस में पड़ी मेज़ की कुर्सी पर बैठी हुई थी जब वो वहाँ आया था। टेरेस पर रात के इस पहर पूरे शहर की इमारतों की रोशनियां नजर आ रही थी, दूर समंदर में डोलती कुछ कश्तियां और जहाज़ों की भी। नेहा के हाथ में शैंपियन गिलास था जिसमें वो फ्रिज से कुछ पानी डालकर लाई थी, और अब उस टेरेस पर मेज के सामने कुर्सी पर बैठी वो समंदर की तरफ गर्दन मोड़े उस पानी को आहिस्ता आहिस्ता पीने में मसरूफ थी। हवा उसके बालों को उड़ाती ऊपर ले जाती, फिर नीचे ले आती, समंदर की लहरों की तरह, और वो मोमिन के इंतजार में किसी खूबसूरत पेंटिंग की अकेली लड़की की तरह टेरेस पर लगी खूबसूरत लाइट से निकलती रोशनी में बैठी थी। मोमिन के आने पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर मुस्कुराई और गिलास वापस मेज पर रख दिया। मोमिन उसके बिलमुकाबल दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। फिर उसने उसके सामने बोर्ड फ्रेम किए बगैर एक पेंटिंग रखी। नेहा बेसाख्ता मायूस हुई। वो ये सरप्राइज देखने यहाँ नहीं आई थी। मोमिन कभी कभार पेंट किया करता था और अक्सर इसे ही पेंट करता था, और वो पेंटिंग भी इसी ही की थी। वहीं टेरेस में इसी मेज पर इसी तरह हवा में उड़ते बालों और शैंपियन गिलास में पानी पीते हुए तुम्हारा फेवरेट पोज और मेरी फेवरेट पेंटिंग, मोमिन ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। नेहा को लगा वो जैसे उससे दाद चाहता था। ओह इट्स ब्यूटीफुल, उसने पेंटिंग पर गौर किए बगैर कहा। वो हमेशा यहीं बैठती थी, इसी तरह पानी पिया करती थी, और मोमिन ने उसे मॉडलिंग के लिए बिठाए बगैर इसी तरह पेंट किया था। नेहा ने एक नज़र पेंटिंग पर डालते हुए अपना गिलास दोबारा उठाया, और तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखी उस पेंटिंग में अपने हाथ की उंगली में एक रिंग जगमगाती नजर आई थी। एक लहजे के लिए उसे शायद लगा कि वो पेंटिंग थी, मगर गौर से देखने पर नजर आ गया था कि वो पेंटिंग नहीं थी, असली थी। उसके रगों पैर में जैसे एक करंट दौड़ा था। उसने नजर उठाकर मोमिन को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। यू आर, नेहा ने बेहद एक्साइटमेंट के आलम में उसे कुछ कहते कहते जुमला अधूरा छोड़ा, और उस पेंटिंग में अपनी उंगली के गिर्द नजर आने वाली इस रिंग को उस जगह से निकालने की कोशिश की जहां वो धंसी हुई थी। मोमिन, नेहा की आवाज फर्द जज्बात से भर आई थी। वो इस डायमंड रिंग को अब बेहद जज्बाती अंदाज में अपनी उंगली और अंगूठे की पोरों के दरमियान पकड़े हुए देख रही थी। मोमिन ने उसके हाथ से वो अंगूठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में वो रिंग पहना दी।
दिस इज ब्यूटीफुल। नेहा ने अपने हाथ में पहनाई गई इस रिंग को देखते हुए खुशी और एक्साइटमेंट से कहा, तुम्हारे हाथ से ज्यादा नहीं। मोमिन ने बड़ी आहिस्तगी से अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ को होंठों से छुआ और फिर उसे छोड़ दिया। आई लव यू, नेहा ने जैसे उसे रिस्पॉन्ड किया। आई लव यू टू, मोमिन ने जवाबन कहा। नेहा अब अपने हाथ को देख रही थी चमकती आंखों के साथ। तुम्हारा टेस्ट हर चीज में टेस्टलेस है। वो उस रिंग को देखते हुए मोमिन को सराहे बगैर नहीं रह सकी। यानी तुम इनडायरेक्टली अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हो, मोमिन ने बरजस्ता कहा और नेहा ने उसके जुमले पर खिलखिलाकर हंसते हुए अपना हाथ दोबारा मेज पर धरते हुए मोमिन के हाथ पर रखते हुए कहा, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए तुम काफी हो। यकीन नहीं आ रहा। कल्बे मोमिन, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। नेहा इस वक्त खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। क्या अच्छा लगा मुझ में, उसने अजीब सी अदा के साथ मोमिन से पूछा, यूं जैसे अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। मोमिन ने अपने दोनों हाथ सीने पर दिल की जगह रखते हुए कहा, हमें तुम यहां से अच्छी लग गई। वो उसके जुमले पर हंसी और फिर उसने अपनी कनपटी पर उंगली रखते हुए कहा, दिल को अच्छी लगी या दिमाग को? मैं दिमाग से नहीं सोचता, कल्बे मोमिन हूं मैं, दिल ही से फैसला करता हूं हर बात का। मोमिन ने अजीब बेनियाजाना अंदाज में उससे कहा। नेहा ने अपनी उंगलियों के गिर्द जैसे कुछ लपेटने का इशारा करते हुए उससे कहा, जब तुम इस तरह बात करते हो तो तुम लड़कियों के दिलों को अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट लेते हो कल्बे मोमिन। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। जानता हूं, लेकिन कल्बे मोमिन तुम्हारी मुट्ठी में है। नेहा उसके एतराफ पर अजीब गरूर से मुस्कुराई, फिर हंस दी। उसकी मुस्कुराहट कमाल थी और उसकी हंसी जमाल। उसके कानों में लटकते मोती हटकोले ले रहे थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अपनी गहरी स्याह लंबी पलकों वाली आंखों के साथ वो कल्बे मोमिन की आंखों और दिल में बैक वक्त खुबी थी और उसे किसी की याद दिला गई थी। तुम हुस्ने जहां जैसी हो। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे किसी ट्रांस में बोला था। वो हंसी। हुस्ने जहां जैसी क्यों, हुस्ने जहां क्यों नहीं? उसने अजीब गरूर से उस हवाले को समझे बगैर कहा जो कल्बे मोमिन के अंदर से कहीं निकला था। हुस्ने जहां बस एक ही थी। कल्बे मोमिन ने नेहा के गिलास के किनारों पर उस लिपस्टिक से बने होंठों के निशानों को देखते हुए सोचा,